good evening, dear ladies and gentlemen, art lovers, art enthusiasts. On behalf of Chandigarh Lalit Kala Academy, I warmly welcome each one of you to this exquisite exhibition titled Nature's Bliss, an exhibition of watercolors by two of city's most distinguished, most loved senior artists, artist Vijay Bakshi and artist Prem Kapoor. A reverberating round of applause for both our artists, dear audience. That's more like it. Well, to begin this creatively lit evening, let's first light the lamp, illuminate this hall with the lighting of the lamp. I request our guest, I request Balvinder sir to please come forward and light the lamp, sir. I'd also request Tuli sir to please join us in the ceremony. Artist Prem Kapoor, artist Vijay Bakshi, they are the stars of the evening. Artist Ramesh Malhotra, artist Jagdish Ahuja, to please come forward for the lighting of the lamp. Well, light, dear audience, symbolizes wisdom, symbolizes creativity. Rather, it symbolizes the triumph of creativity over darkness. So let's take a moment to invoke the blessings of the One who blesses the hearts of those who are always brimming with light, with creativity, with sunshine. So after illuminating this hall with the light of creativity, dear audience, now let's take a moment and florally welcome the two stars of this evening. I'd request Shri Bhim Malhotra, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to please extend a floral welcome to our artist, artist Vijay Bakshi. I'd request Bhim sir to please present a floral welcome. Welcoming sir with our reverberating round of applause. I now request Shri Ravinder Sharma, Vice Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to please present a bouquet of flowers to artist Prem Kapoor. The audience, let's make this welcome warmer by our applause, by a warm applause. Thank you so much, sir. The audience, as we step into an evening celebrating, we'll make our artists as comfortable as possible. And like I was saying, as we step into an evening celebrating creativity and nature, let's hear from those voices who have given this platform utmost support. So I'd first request Shri Bhim Malhotra, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to shed some light on the significance of this event. Sir. So, good evening, everyone. So, respected city artist, senior artist, and our special star of the day artist, Vijay Bakshi ji, and Kapoor ji. आज ललित कला अकादमी के लिए बड़ा हिस्टोरिकल डे है कि कई बार एक छुपा हुआ खजाना होता है, वो नज़र नहीं आता, तो उनको हम ढूंढ के लाए हैं, उनकी हम एग्जीबिशन कर रहे हैं. एंड वो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो वो मैं देख रहा हूँ ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि हमारे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट मल्होत्रा जी, जगदीश जी, तुली साहब, बलविंदर जी और वडेरा साहब और काफ़ी मैं देख रहा हूँ सीनियर आर्टिस्ट यहाँ पे. स्पेशली आज के इवेंट में कुछ मेरे को अलग से चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, वो ज़रूरी भी था. सो मैं सबका वेलकम करता हूँ. और जो आज की जो हमारी एग्जीबिशन है, जो आर्टिस्ट हैं, दोनों बड़े स्पेशल हैं. एग्जीबिशन भी बड़ी स्पेशल है और आर्टिस्ट भी बड़े स्पेशल हैं. आर्टिस्ट स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनका एक फर्स्ट सोलो शो है, तो मेरे ख्याल से सबको क्लैपिंग करनी चाहिए. और कई चीज़ें पर्दे के पीछे छिपी हुई होती हैं, तो उनको हम सामने लेके आए हैं. और इनका काम है जो बेसिक टेक्निक्स थी वाटर कलर की. मुझे आज के दिन में बलदेव रतन जी भी बहुत याद आ रहे हैं. उनकी बिटिया भी यहाँ पे आई हुई हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं. बलदेव रतन जी से ऐसे स्ट्रोक्स ये लगाया करते थे, इस टाइप के सब्जेक्ट भी ऐसे ही सेलेक्ट करते थे, तो उनकी आज हमें बड़ी याद आ रही है. और ये उन्हीं के अंडर इन्होंने गाइडेंस ली है. और जो इनका जो
वाटर कलर में आजकल बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेयर आफ्टर लेयर, बड़े सारे टेक्निक से काम हो रहा है। जो इनका जो लेयर आफ्टर लेयर वाला काम है, दिस इज़ द बेसिक टेक्निक ऑफ वाटर कलर। इसमें मेरे ख्याल से जो आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनको दे शुड लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस एग्जीबिशन। तो मैंने देखा जॉन पाइक एक वाटर कलर थे यूएसए के, उनका भी मैंने देखा जो स्टार्ट है वाटर कलर का जो करते हैं वो, हालांकि ये टेक्निक इतनी आसान नहीं है करना। आप जब आप किसी ट्रीज़ को ख़ास तौर पे बनाना, आप लेयर्स आफ्टर लेयर ऑफ इफेक्ट लेके आ रहे हो। बाकी आई एम स्पेशल थैंक्स टू रमेश मल्होत्रा जी, इनका बहुत बड़ा रोल है इस एग्जीबिशन में, क्योंकि ये जब भी मिलते थे तो मेरे को कहते थे इनका एक एग्जीबिशन करना है, तो मैंने भी बड़ा दिल से वेलकम किया। हमने कहा कि आप टाइम निकालो, हम करते हैं, तो वो दिन आज आ गया ये। सो थैंक यू मल्होत्रा साहब, आपका भी इसमें काफ़ी इनिशिएटिव है, क्योंकि आपका एक ट्रायंगल है ये, क्योंकि जब पॉजिटिव बातें होती हैं, पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, तभी इस तरह वाली चीज़ें निकलती हैं। नहीं तो कोई भी कह दे भाई इन्होंने तो कभी शो किया नहीं। आजकल बड़ा कुछ है, मतलब कि, पर आई एम वेरी हैप्पी, आई एम नॉट ओनली आई एम हैप्पी, पर मैंने देखा है जिसको कि पता चला है कि हम इनका एग्जीबिशन कर रहे हैं, कपूर साहब की, बख्शी साहब की, तो सब ने ना उनको बड़ी, कई बार ना किसी चीज़ को लेकर ना अंदर से खुशी होती है, कहीं ऊपर का दिखावा होता है। मैंने देखा लोगों को अंदर से बहुत खुशी हुई कि हम इनका एग्जीबिशन कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस वी फील वेरी प्राउड एंड ऑनर चंडीगढ़। चलो मेरे ख्याल से थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये इतना बढ़िया में शो दिया। और दोनों आर्टिस्ट, इनका अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो दे आर ऑल डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको जैसे हमने कहा वैसे ठीक है जी, ठीक है, बस दे आर वेरी हैप्पी कि उनका काम डिस्प्ले हो रहा है, उसके अलावा इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। सो दिस इज़ समथिंग ग्रेट। सो मैं अपने स्टाफ का भी थैंक्स करना चाहूँगा, हमारे जो मेंबर हैं ललित कला एकेडमी के, विशाल जी, शिल्पी अरोड़ा, कमलपाल जी, हमारे रविंदर शर्मा, श्रुति है, और शहर के सारे आर्टिस्ट हैं, तो सबका मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि दिस इज़ वेरी हिस्टोरिकल एग्जीबिशन। वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ सीनियर आर्टिस्ट, तो हम और भी आगे सीनियर आर्टिस्ट का करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर। Thank you, sir. And like sir said, this exhibition truly is historic. And you know why? It's because what I see before me is a galaxy, a colossal galaxy of stars. And it's a blessing to be in the presence of such empowered souls, dear audience. So count yourself among the most luckiest ones. On this note, I'd now invite Shri Ravinder Sharma, Vice Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to enlighten us with his words. Sir. आज इस छत के नीचे गुरुओं का कहना चाहिए इतना खूबसूरत मेला लगा हुआ है, और दो महान आत्माएं हमारे बीच में अपने काम लेके पहुंचे हैं। इंग्लैंड के एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे, मुझे उनकी बात याद आ रही है सर, ये मेरे शब्द आपके लिए ट्रिब्यूट हैं। एडलस हक्सले, ही वॉज अ वेरी एमिनेंट राइटर एंड फिलोसोफर। उनका कहना था द सीक्रेट ऑफ जीनियस इज टू कैरी द चाइल्ड इनटू द ओल्ड एज। आज आप में दो बच्चे दिख रहे हैं जिनके अंदर बहुत जिज्ञासा है। मुझे लगा कि ये जो आपका ध्येय है कला करने का, एक चाइल्डिश है, और हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर आपके गुरु के दो बेटियां भी हमारे साथ हैं। मुझे प्रोफेसर बलदेव रतन जी, आपके हर काम में उनकी आत्मा आपको अप्रिशिएट करती दिख रही है। मैं चाहूँगा कि दोनों हमारे सामने आएँ। हम कहीं भी वाटर कलर इस तरह से देखें तो लगता है उनकी आत्मा झांक रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, आप उनकी रिप्रेजेंटेशन है। एक और हस्ती को मैं यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ,
डॉक्टर BN गोस्वामी आज से लगभग 30 साल पहले मेरी एक प्रदर्शनी में उन्होंने जोश मलिहाबादी का एक शेर बोला था। ये शेर भी सर आपकी नज़र है। उन्होंने लिखा, इतना मासूम हूँ आपकी फितरत से, कली जब चटकी तो मैंने झुक के पूछा, आपने इरशाद किया। मैं समझता हूँ कि एप्रिसिएशन इस हद तक गुजर जाती है आदमी की कि कली का चटकना भी आवाज़ में एक संदेश मिलता है। वो संदेश आपने सुने हैं इन पेंटिंग को बनाते वक्त, ये आम आदमी नहीं सुन सकता। यू नीड टू गो दैट डीप। एक पत्ते के हिलने से, थरकने से जो संगीत बजता है वो आपको इन पेंटिंग में दिखेगा। एक पत्थर किसी किनारे बैठ के जो अपना गीत सुनाता है वो भी आपने यहाँ सुनाना है, आपको सुनने को मिलेगा। एक कलाकार इस उम्र में जब अपना काम लेके आपके बीच में आता है तो उसकी पेंटिंग और सबई बह दोनों को बारी बारी देखिएगा। केवल पेंटिंग नहीं, पेंटिंग बनाने वाले को भी यहाँ देखना ज़रूरी है। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत दिनों से आपके साथ फेसबुक पे देखता रहूँ, आपको शेयर करता हूँ। एक शब्द कई बार लिख देता आदमी कि मैं अपने भीतर की बेचैनी को रंग दे रहा हूँ। सर मैं कहना चाहूँगा कि आप रंग, उमंग, तरंग सबके ज्ञाता हैं। आपके काम में वो उमंगें भी हैं, वो रंग भी है, वो तरंगें भी हैं जो हमें कुछ पलों के लिए हमसे छुड़ा के, हमें जिसको कहते हैं ना आर्ट लाइब्रेट्स, ये कला है जो आदमी को मुक्त करती है। सा कला वो विमुक्त है। सो मैं आभारी हूँ भीम मल्होत्रा साहब का, जिन्होंने इतने प्यार से आपके इस शो को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं सब गुरुओं का आभारी हूँ जो आज हमारे साथ यहाँ इस एक्टिविटी में शामिल हुए हैं। सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. On this note, I now request artist Ram Pratap to please come forward and enlighten us with his words. Sir. सभी को नमस्कार। वैसे तो रविंदर जी ने सारा कुछ बोल दिया है और उससे पहले भीम जी ने भी बड़ा कुछ बोला है। अब इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि जितने लोग आए हैं सब अपना शो देखेंगे। मैं दो लाइनें बोलूँगा। अंदलीब साहब की दो लाइनें हैं कि बड़े साल से, इसलिए कि मैं बड़े साल से मैं भी बोलता था इनको कुछ किया करो आप, कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, लेकिन हम घबराए तो। वो कहते हैं कि शपक धनुक महताब घटाए, तितली जुगनू तारे फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, ये दामन हाथ में आए तो इनके पास बहुत कुछ है। ये सिर्फ वाटर कलर्स नहीं है। एक उस समय की ज़िंदगी जब एक स्टूडेंट को आर्ट्स कॉलेज में, हमने भी उस सफ़र से गुजरे हैं, जब हम बैठ के स्केच किया करते थे और ये सारी चीज़ें सीखते थे। तो ये बेस है, और जिस बिल्डिंग का बेस अच्छा होगा उस पर इमारत भी अच्छी बनेगी। तो ये इमारतें, ये दो नहीं है, तीन इमारतें हैं। ये कहते हैं एक बड़ी इमारत में सबसे बड़ी तो पहले इमारत होती है, इमारत के बाद उससे छोटा दरवाज़ा होता है, दरवाजे से छोटा उस पर एक ताला होता है, और ताले से भी छोटी एक होती है चीज़, चाबी। तो ये दो चाबियां तो मिल गई, और जो खुली ये बिल्डिंग, ये मकान खुले तो ये सब आपके सामने है। एक ताले की चाबी अभी थोड़ी थोड़ी नज़दीक मिल रही है। जिस दिन वो ताला खुल जाएगा वो है मल्होत्रा जी का, तो आपको बड़ा कुछ और देखने को मिलेगा। हमने बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से। ज़रूरी नहीं होता कि, एक बड़ी बात होती है कि ज़रूरी नहीं है कि टीचर आपको, स्टूडेंट को कुछ सिखाएगा। इस स्टूडेंट को चाहिए कि उसके पास जो कुछ है वो ग्रैब कर ले। तो वो शिद्दत और उस इच्छा से अब काम करेंगे तो बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है, बहुत कुछ। तो इसलिए हमने इनसे बड़ा कुछ सीखा है, और आप जो इसको देख करके अब आज इंजॉय करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कितने साल के बाद, एक उम्र के बाद। अच्छा, एक और बात है कि
यहाँ से इनकी उम्र मुझे लगता है कि फिर रिवर्स में चलनी शुरू हो जाती है, पीछे जवान हो जाते हैं ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि लोग वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं 60-65 साल के बाद, चलो उनकी करना है जी। इन लोगों ने तो 75 साल की उसमें तलवार निकाली है। तो ये जो इन्होंने आज काम कर दिखाया, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि जो लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये मापदंड कोई और डिसाइड करता हो कि कौन कितना बड़ा आर्टिस्ट बना, क्या बना, कैसे नहीं बना, बट आग में अगर वो आग है तो वो कभी ना कभी आपको आग जगाएगी। आज इनकी आग जागी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरे बंदे की भी आग जागेगी। नमस्कार। Thank you, sir. Dear audience, it's now time to honor, like I said, the stars of this evening, artists whose extraordinary work has not only graced our exhibition, but has left an unforgettable mark on the world of art. And we make a small gesture to thank them, truly thank them for making our heart fragrant with their dedication, with their passion, compassion, their art. So I'd request Balvinder sir, Bhima Lothra sir to please come forward. I'd first request artist Vijay Bakshi to please come forward. I'll read out something about sir. Although, of course, both our artists warrants no introduction. Shri Vijay Bakshi, sir, whose creative journey began in 1963, is a name synonymous with dedication and innovation. His rigorous training in Chandigarh College of Art and Commercial Art led him to prestigious milestone, including his role as an artist in PGI, where he lent his genius to scientific designs and presentations. Even after retirement, Bakshi sir's love for watercolors rekindled, merging nostalgia with modern techniques. His work beautifully capture the essence of nature, bridging tradition with contemporary tools to create timeless masterpieces that inspire wonder. It is with great pride that I invite and honor artist Vijay Bakshi. I'd request Balvinder sir to please honor sir by draping a shawl around him. Dear audience, we all can do our bit by making this honor even more special with our warm applause. Next we have is artist Shri Prem Kapoor, a passionate artist whose journey began in 1965. Sir has dedicated his life to blending art with purpose, from completing his diploma in commercial art to serving the Department of Health and Family Welfare, while his works have brought to life posters, exhibitions, and public campaigns that inspire and educate. Post-retirement, Sir rediscovered his deep love for watercolors, transforming each painting into a story of emotion and exploration. His works reflect a harmonious blend of creativity and service, reminding us that art has a power to touch lives. Ladies and gentlemen, it's my honor to invite and honor artist Prem Kapoor. I'd request Balvinder sir, Mohinder Tuli sir, to please come forward and honor the artist. The audience, now as we celebrate the brilliance of art and the extraordinary journeys of our two featured artists, it's time to unleash creativity in form of a catalogue. So we'll now have the release of the catalogue. For that, I'll request Balvinder sir. It's only befitting, dear audience, to commemorate this extraordinary evening with something as tangible as this catalogue, which basically captures the creative spirit, the creative urge of our two artists. And of course, the smiles of our artists will make the photographs even more colorful. The audience, it's now time to capture these priceless moments. The audience is, of course, free to immerse themselves in this ocean of creativity, while all our guests are requested to come forward for a group photograph.